Hello everyone, welcome to the new session of chapter 6 from Indian Economic Development, and the chapter is about rural development. So far in this chapter we have discussed in detail about two topics. Number 1 was about the key issues or challenges in rural development, wherein we have seen few points, and the next topic that we discussed was about classification of rural credit needs, and the classification was divided into two categories. Number 1, according to time, and according to purpose. Okay, these were the topics we already done from this chapter. Now we are going to start today's topic, and the topic that we are going to discuss today is about the sources of rural credit. Now, let's start with the topic sources of rural credit. See, at the time of independence, moneylenders and traders exploited small and marginal farmers and landless laborers by lending money to them at the higher rate of interest and manipulating the accounts. सी क्या करते थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस से पहले, अगर फार्मर्स को कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए इन द फॉर्म ऑफ लोन, देन दे वे टेकिंग फ्रॉम ये मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स से ये लोग पैसा लेते थे, जो इनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे. अब कैसे एक्सप्लॉयटेशन करते थे? बाय चार्जिंग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मैनिपुलेटिंग द अकाउंट. अब इसकी वजह से क्या होता था, द फार्मर्स जिनका एक्सप्लॉयटेशन वर्टिकल होता था एंड मैनिपुलेशन होता था अकाउंट्स में, वो ट्रैप में फंस जाते थे. डेड ट्रैप जिसे कहते हैं, बिकॉज इंटरेस्ट पे करने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं होता था. तो इंटरेस्ट पे करने के लिए अगेन दे हैव टू बोरो सम अदर लोन. ओके, सो it was a situation of trap. They can never come out of this trap, that is dead trap. Now changes कब आए इस ऐसे वाली सिचुएशन से? A major change occurred after 1969. तो क्या हुआ 1969 में मेजर चेंज? when India adopted social banking and multi-agency approach to meet the needs of the rural credit. अब 69 में सोशल बैंकिंग एंड मल्टी एजेंसी अप्रोच इंडिया में एडॉप्ट हुआ, जिसकी वजह से द सिचुएशन एंटायरली चेंज्ड. ओके, एंड रूरल क्रेडिट वॉज इजीली अवेलेबल एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैनिपुलेशन कुछ नहीं, नो. सो द थिंग्स वर इन द फेवर ऑफ द फार्मर्स. लेटर 69 में सोशल बैंकिंग आ गया. लेटर नाबार्ड, इसके बारे में आपने सुना होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वॉज सेटअप इन 1982, एंड दिस वॉज कंसिडर्ड एज द एपेक्स बॉडी. एपेक्स बॉडी मतलब सबसे ऊपर ये है, टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम इन रूरल एरिया. रूरल एरिया में जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है, ओके, सो दैट वॉज उनकी जो एक्टिविटीज़ है, दैट वॉज कोऑर्डिनेटेड विद this one NABARD development, rural development. The Green Revolution was a harbinger of major change in the credit system, as it led to diversification of portfolio of rural credit towards production oriented lending. अब ग्रीन रेवोल्यूशन भी उस समय हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद. ओके, सो दैट ऑल्सो चेंज द वे ऑफ द रूरल क्रेडिट. with modernization, upgradation of agriculture, the requirement of credit है वो increase हो गई, because green revolution में HYV seeds, उसके साथ irrigation facility होनी चाहिए, proper use of fertilizer होना चाहिए. Okay, so इन सब चीज़ों के लिए the demand for the credit increased, rural credit. Okay, now the rural credit can be classified into two categories, institutional and non-institutional, जिसे formal and informal sector भी कहते हैं.
लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस या इनफॉर्मल सेक्टर में क्या है. These are the traditional source of rural credit. ट्रेडिशनल सोर्स है. ओके जिसमें कौन इंक्लूड रहता है? मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स, कमीशन एजेंट, लैंडलॉर्ड्स, फ्रेंड्स, ये सब इसमें इंक्लूडेड हैं. आउट ऑफ ऑल दिस मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स, नो फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, द कमीशन एजेंट, इन सब में से मनी लैंडर्स का जो रोल है, out of all the above sources, money lenders have been advancing a major share. Major role कौन play करता है यहाँ पे? Money lenders. They advanced total 94% of the credit in the year 51-52. अब 51-52 की बात करें तो 94% क्रेडिट इनके मनी लेंडर्स थ्रू जाता था. अब प्रॉब्लम क्या है? मनी लेंडर्स से अगर पैसा in the form of credit अगर जाता है तो 3 points here we will see. Number 1, they charge very high rate of interest and exploit the farmers. इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा चार्ज करते थे एंड फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे. नंबर 2, अगर जिनको लोन दिया है वो लोन अगर पे नहीं कर पाते हैं, इफ़ दे फेल टू पे बैक द लोन, ये मनी लेंडर्स क्या करते थे? दे acquire the land of that farmer. Number 3, they manipulate the account. Okay, so 3 things here, everyone. Money lenders 51-52 में 94% of the credit was from their side. And what was the problem? If the money was being taken by this institutional, non-institutional source, money lenders, 3 points: high rate of interest. 2, they acquire the land if the farmers fail to pay the loan back. 3, they manipulate the accounts. Okay, so that was about the money lenders. Now let's talk about few other non-institutional sources. Traders and commission agent. They provide advance credit to the farmers on the mortgage of crop. से समझो ये बात क्या है. ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट से अगर फार्मर पैसा लेते हैं तो उनको मॉर्टगेज मतलब गिरवी रखना पड़ता था. क्या गिरवी रखना पड़ता था? क्रॉप्स को, कि जितना प्रोडक्शन होगा वो सब इन कमीशन एजेंट या ट्रेडर्स को ही जाएगा, तभी उनको लोन मिलता है. अब इन लोगों से पैसा लेने में प्रॉब्लम क्या है? नंबर 1 इज सेम एज द मनी लेंडर्स के जो इश्यू था वहीं पे, वहीं यहाँ पे है. दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. नंबर 2, एंड क्रॉप उनके पास मॉर्टगेज था, सो they force the farmer to sell the crops to them at lower prices. That was the problem. Okay, they force the farmer to sell the crops at the low prices. Number 3, landlords. Landlord is also the non-institutional informal sector. Let's see what are the problems faced by the farmer if they have the credit from the landlords. Landlords also become an important source of granting loan. लोन भी यहाँ से मिलता था, but what was the problem? Let's see. एक पॉइंट तो कॉमन ही है, that is they charge high rate of interest. कोई भी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ले लो, they charge high rate of interest. That point will be there. 3, they exploit the farmers by manipulating the accounts. तो ये लोग भी manipulate करते थे accounts को. Next non-institutional source is relatives. Relatives also play an important role in giving credit to the farmers. Generally relatives जो है यहाँ पे कोई interest नहीं रहता था. Money is returned as per the requirement of the loan provider after the harvest. That was somewhat more easy, but no इतना ये source जो है relatives का, that was not that much during those days. Now let's talk about some institutional sources, that is formal sector के बारे में अब बात करते हैं, जहाँ rules and regulations है, the things are favoring the farmers. Okay, let's see a few topics here. First of all, the introduction. The institutional structure of rural banking today
consist of a set of multi-agency institutes, namely commercial bank, regional rural banks, cooperative banks, land development banks. So these all are the part of formal sector. Cooperative Credit Society was established in 1904, so that is also the part of the formal sector. Cooperative credit societies, which played a very important role. इनका रोल बहुत important है शिफ्ट करना इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर में. फार्मर्स इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर में आए, उसमें क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, उनका बहुत बड़ा रोल है जो एस्टैब्लिश हुई थी 1904 में. लेकिन हमने जैसे पहले इंट्रोडक्शन में देखा, ड्रास्टिक चेंजेस कब से आए? 1969 से आए ड्रास्टिक चेंजेस, व्हेन इंडिया अडॉप्टेड सोशल बैंकिंग एंड मल्टी एजेंसी अप्रोच. ऑल्सो बैंक्स जो उस समय थी उसका नेशनलाइजेशन हुआ. नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक इन 69 एक्सपैंडेड द रोल ऑफ फॉर्मल सेक्टर. सो एक्चुअली 1904 में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एस्टेब्लिश हुई, वहाँ से चेंज हुआ इनफॉर्मल में से फॉर्मल में आना फार्मर्स का क्रेडिट के लिए. बट ड्रास्टिक चेंजेस जो हुए हैं वो 69 में ही हुए हैं, जहाँ और जब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स होने लगा. ओके, सो this was the introduction about formal sector. Now let's talk about few formal sectors here. The first formal sector here we will talk about the credit cooperative society, जो अभी हमने इंट्रोडक्शन में देखा 1904 में वो एस्टैब्लिश हुए थे. These society advance credit to the farmers. अब रूरल क्रेडिट मतलब फार्मर्स को लोन क्रेडिट मिलना है यहाँ पे, बट दे एडवांस द लोन एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट. एंड इनका कंट्रीब्यूशन रूरल क्रेडिट में 30% है. जितनी भी रूरल क्रेडिट ऑल ओवर द कंट्री में फार्मर्स लेते हैं, ओके, उनमें 30% रोल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का है. अब इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? नंबर 1, टू फ्री द फार्मर्स फ्रॉम द क्लचेस ऑफ मनी लैंडर्स. मनी लैंडर्स जो एक्सप्लॉयटेशन करते थे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे, मैनिपुलेशन करते थे. their main aim was to free the farmers from the clutches of these money lenders. Number 2, they advance the loan at lower rates. Credit facility spread करते थे all over the country में, and timely and continuously flow of fund यहाँ से होता था. Okay, so that is about the credit cooperative society. Okay, 30% share rural credit में इनका है. The next is about land development banks. These provide long-term credit. Land development banks से अगर पैसा या farmers पैसा लेते हैं तो that was for long duration. But the credit here is given against the mortgage of the land. If the farmers keep the land mortgaged, then they get the money from here. Now the objective, number 1, they provide long-term credit. And यहाँ से जो पैसा मिलता है, the farmers can use this money for agricultural input, constructing permanent structure on the land, because the duration for this credit is very long. So the farmers can use this money for purchasing some big assets or construction of some permanent shed or structure on the land. These provide fund for other productive purposes also. दूसरी productive purpose है, unproductive नहीं. Productive purpose मतलब agriculture purpose के लिए ही, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यहाँ से पैसा मिलता है. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, सब्सिडीज़ भी यहाँ मिलती है. ओके, सब्सिडीज़ विच बेनिफिट्स द फार्मर्स. सब्सिडी याद रखना स्टूडेंट्स, दिस इज एक्चुअली एन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द गवर्नमेंट्स व्यू पॉइंट. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड इंस्टीट्यूशनल सेक्टर, दैट इज कॉमर्शियल बैंक. हमने इंट्रोडक्शन में ये देखा कि बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ 69 में. सो आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक्स, कमर्शियल बैंक प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एडवांसिंग क्रेडिट टू द फार्मर्स. ओके, 69 में नेशनलाइजेशन होने के बाद बैंक्स का दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रांटिंग क्रेडिट टू द रूरल फार्मर्स. अब इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं?
कमर्शियल बैंक है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है? लेट्स सी दैट ऑब्जेक्टिव. टू डायरेक्टली हेल्प द फार्मर इन एक्सपेंडिंग देयर ब्रांचेस इन रूरल एरिया. ये जो कमर्शियल बैंक है, दे एक्सपैंड देयर ब्रांचेस इन रूरल एरियाज. And rural areas में अगर branch है, then farmers can easily approach that bank and can satisfy their needs. Okay, so they were expanding their branches in rural areas. That is first. Number two, ये expanding their branch and rural area में अपनी branch open करना, that is directly helping the farmer. They were helping the farmers indirectly also. How they were helping the farmers indirectly? Through agents. बैंक के एजेंट फार्मर्स को असिस्ट करते थे इन द थिंग्स वेयर दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, या हाउ टू हैव और अवेल द लोन और क्रेडिट फैसिलिटी कैसे मिलेगा, दैट ऑल थिंग इनडायरेक्टली भी हेल्प करते थे. टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ फैसिलिटीज बीइंग प्रोवाइडेड. Okay, so point 3 once again here, to create awareness about existence of facilities being provided by them through radio, newspaper and television. So ये commercial bank credit जो है उनका objective एक directly help करना by expanding their branches. Number 2, indirectly help करना through their agents. Number 3, they create awareness among the farmers through newspaper, television and radio. एंड ऐसे बहुत सारे सोर्सेस जिनसे अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है. सो दैट वाज अबाउट द कमर्शियल बैंक्स. रीजनल रूरल बैंक्स. नाउ सी नाम से ही पता थोड़ा चल जाएगा, रूरल बैंक्स. अब ये बैंक क्यों एस्टैब्लिश हुई है? टू कवर द गैप इन क्रेडिट स्ट्रक्चर ऑफ द अवेलेबल फैसिलिटीज इन द रूरल एरियाज. ओके, नाउ जो भी गैप रहता था फार्मर्स के बीच में एंड क्रेडिट के बीच में, रूरल क्रेडिट के बीच में, ये गैप ये रूरल बैंक्स फुलफिल करते थे. नाउ देयर मेन ऑब्जेक्टिव्स, दे ओपन द ब्रांचेस इन दोज एरियाज जहाँ पे कोई बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है. तो ये गैप है, जहाँ कोई बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो ये गैप फुलफिल कौन करता है? रीजनल रूरल बैंक्स. Number 2, they give credit facilities to the small and marginal farmers, which is very important. Small and marginal farmers को अगर help मिल जाती है, then it will improve their lifestyle, working condition improve होंगी, they will be able to generate a revenue also. One more फॉर्मल सेक्टर की अगर बात करें तो यह है सेल्फ हेल्प ग्रुप. इसके बारे में शायद आपको पता हो. रिसेंटली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव इमर्ज्ड टू फिल द गैप. अब पहले जो हमने देखा जो गैप था वो फुलफिल कौन करता था? रीजनल रूरल बैंक्स स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को हेल्प करते थे. स्टिल जो भी गैप है दैट वाज बीन फिल्ड बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. ओके, अब कैसे देखते हैं. फॉर्मल क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म हैज़ नॉट ओनली प्रूवन इनएडिक्वेट. ये जो हमने फॉर्मल सेक्टर्स देखे, ओके, वो इतना एडिक्वेट नहीं थे, बट ऑल्सो नॉट बीन फुली इंटीग्रेटेड इनटू ओवरऑल रूरल सोशल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट. इससे पूरा जो रूरल एरिया है, जो पूरा कम्युनिटी है, उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ. सो सेल्फ हेल्प ग्रुप प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल हियर. इट केम अप एज द माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम. सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो एक तरह का माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम है. Now, focus of self-help group in those rural, poor, small and marginal farmers who do not have sustainable access to formal banking system. अब जो भी farmers, जो भी laborers, agriculture and non-agricultural जो भी है, जो ये rural credit facility का benefit नहीं ले पाते थे formal banking system का, so they self-help group जो है ये इनके लिए बहुत beneficial है. अब इनका objective क्या है? Since some kind of collateral is required, vast proportion of poor and rural households were automatically cut out of the credit network. Some collateral has to be kept. So few or most of the poor households जिनके पास कुछ नहीं है, they were automatically out of the credit network. Now,
The self-help group promoted thrift in the small proportion by minimum contribution from each member. तो इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं वो सब अपने हिसाब से इस ग्रुप में कंट्रीब्यूशन करते थे. अब सब कंट्रीब्यूट करते हैं थोड़ा थोड़ा, देन ज़्यादा पैसे इसमें हो जाता है. नाउ फ्रॉम दिस पूल्ड मनी क्रेडिट इज गिवन टू द नीडी पर्सन and he has to repay the credit in the small installment and reasonable rate of interest. एक डेटा है हमारे पास यहाँ पे. बाय मार्च एंड 2003 में 7 लाख स्मॉल हेल्प ग्रुप्स हैड रिपोर्टेडली बीन क्रेडिट लिंक्ड. 7 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म हो गए थे. सो सेल्फ हेल्प ग्रुप की वजह से जहाँ फॉर्मल सेक्टर नहीं पहुँच सकता था या जहाँ उनके सर्विस इनएडिक्वेट थी या कुछ कोलेट्रल के लिए नहीं है, so this proved a very boon to them. Such credit provisions are generally referred to as microcredit programs. Now, these have helped in empowerment of women as easy loan is available for women. Women के लिए भी ये self help group जो है that is very easily loan women's को यहाँ से मिल जाती है. These borrowings are mainly confined to consumption purpose and not used for productive purpose. Okay, यहाँ से जो borrowing होती है तो वो consumption purpose के लिए है, productive purpose के लिए नहीं. One more and last formal sector में अगर बात करें तो वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. ये आगे हमने इंट्रोडक्शन में देखा था नाबार्ड के बारे में. इट वॉज सेटअप इन 82 एज एन एपेक्स बॉडी एंड इट कोऑर्डिनेट जितने भी फॉर्मल सेक्टर्स है उन सब की एक्टिविटीज़ को ये कोऑर्डिनेट करता है. अब इनके मेन फंक्शंस क्या हैं? 1, दे एक्ट एज एन एपेक्स बॉडी, सबसे हेड है, सबसे ऊपर है, एंड यहाँ से क्रेडिट भी मिलती है रूरल एरियाज में. Number 2, it promote the strength of the credit institution in credit delivery system. Okay, it strengthen the जितने भी credit formal sectors हैं, को credit cooperative, then commercial bank, regional, rural, इनको they provide strength to them. The NABARD provides strength to all these formal sectors. These national Bank for Agriculture and Rural Development not only provide credit for farming purpose but they do provide credit for non-farming purpose के लिए भी यहाँ से help मिलता था, मतलब मिलता है. To control and evaluate the projects financed by it, they evaluate the project. ये जहाँ finance करते हैं तो वहाँ का project को ये evaluation भी करते हैं. Lastly, the coordinate the functions of different financial institution. जितने भी financial institution है उनको भी ये coordinate करता है. Okay, in advancing rural credit. Okay, so this was the topic about the sources of rural credit, जहाँ पे हमने 2 टॉपिक डिटेल में डिस्कस किए, फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर, जिसे इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स भी कहते हैं. ओके, नाउ रूरल बैंकिंग जो टॉपिक अभी हमने डिस्कस किया, ओके, लेट्स सी द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक. ओके, क्रिटिकल अप्रेजल, पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स इसके देखते हैं. रैपिड एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन रूरल फार्म एंड नॉन फार्म आउटपुट. इनकम बढ़ी, आउटपुट बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी. स्पेशली आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन फार्मर्स को ये जो क्रेडिट फैसिलिटी है, दे केम टू नो मोर अबाउट दैट बिकॉज ग्रीन रेवोल्यूशन में सिर्फ HYB सीड्स नहीं लेकिन फर्टिलाइजर, इरिगेशन फैसिलिटी ये सब चाहिए. ओके, सो इट हेल्प द फार्मर्स टू अवेल द सर्विस एंड क्रेडिट फैसिलिटीज एंड अ वेराइटी ऑफ लोन फॉर मीटिंग देयर प्रोडक्टिव नीड्स. फार्मर अब अपनी नीड्स के लिए फॉर्मल सेक्टर को अप्रोच करते थे. फेमाइन्स बिकेम द इवेंट ऑफ द पास्ट बिकॉज अब हमारे पास फूड सिक्योरिटी है, बफर स्टॉक भी हमारे पास है ग्रेन्स का जो इमरजेंसी में यूज़ किया जा सकता है.
However, all is not well with our banking system. ये पॉजिटिव पॉइंट्स तो हमने देखे, दैट फार्मर मूव फ्रॉम इनफॉर्मल टू फॉर्मल सेक्टर, जहाँ उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है. पेमाइंट्स है, वो पास्ट इवेंट्स हैं. बफर स्टॉक रहता है जो इमरजेंसी में अब यूज़ किया जा सकता है. लेकिन स्टिल एवरीथिंग इज़ नॉट वेल विथ आवर बैंकिंग सिस्टम. लेट्स सी क्या लैकिंग है. The volume of rural credit is not sufficient and the amount of loan sanction is also not adequate. जितना अमाउंट मिलना चाहिए फार्मर्स को उतना नहीं मिलता है. So the amount is inadequate. Many small and other marginal farmers do not have access to formal banking system yet. अभी भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कुछ ऐसे हैं जो रूरल बैंकिंग सेक्टर के टच में नहीं है. with the possible exception of commercial bank and other formal institution, have failed to develop a culture of deposit mobilization. ये एक थोड़ा नेगेटिव बात अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे. डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में इश्यू है जिसकी हम बात करेंगे. लेंडिंग टू अ वर्थवाइल बोरोवर एंड इफेक्टिव लोन रिकवरी, दिस थिंग इज वेरी मच लैकिंग. जो इफेक्टिव बोरोवर है उन्हीं को पैसा मिलना चाहिए, एंड जो लोन रिकवरी है दैट वाज आल्सो नॉट दैट मच इफेक्टिव. अब जैसे जो लोन लेते हैं वो अगर वापस नहीं देते हैं, और बैंक का जो रिकवरी डिपार्टमेंट है वो इतना एक्टिव नहीं है, ओके, एंड वर्थवेल बोरोवर हैं उन्हीं को देना, ऐसा भी कुछ नहीं है. सो व्हाट हैपन, एग्रीकल्चर लोन डिफॉल्टर्स बढ़ने लगे. It is like that farmers are now deliberately refusing to pay the loan amount back. उनको पता चल गया कि the things are not working against them if they are not paying the loan back. So they now deliberately started not paying the amount back to the banks. Thus the expansion and the promotion of rural banking sector has taken a back seat. एक स्टेप पीछे आ गया. Now टू इम्प्रूव द सिचुएशन इट वॉज सजेस्टेड, बैंक को ये सजेस्ट किया गया कि आप कुछ चेंजेस लेके आओ. दे हैव टू इंक्रीज द रिलेशनशिप विथ द बोरोवर्स. बोरोवर्स के साथ रिलेशन बढ़ाना पड़ेगा. ओके, नाउ हैबिट दे हैव टू इनकलकेट इन दिस पीपल दैट हाउ टू यूज प्रॉपरली, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज कैसे हो. ओके, जो फार्मर्स बैंक से पैसा लेके जाते हैं वो उनके रिसोर्स है, रिसोर्स का कैसे ठीक से यूज़ हो ताकि उनको भी बेनिफिट मिले एंड बैंक्स को भी पैसा वापस अपने टाइम पे मिल जाए. ओके, सो दिस वाज द कंक्लूजन अबाउट रूरल बैंकिंग. ओके, वी हैव सीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ हियर.